Which of the following is the most characteristic symptom of lung cancer? Persistent or intense coughing. During the first 24 hours of treatment of a burn patient, hourly monitoring of what can help assess fluid replacement. Urine specific gravity. Which of the following condition is the most common form of thyroid hyperactivity? Graves' disease. A patient is admitted with a suspected bladder cancer. The nurse assesses the patient for which early sign of the disease are. इसका होगा hematuria and no pain. What is the reason for increase in body temperature due to injury? इंजरी के कारण increase body temperature किस कारण से होता है? Hypothalamus injury. The nurse would determine the patient to have a hypoglycemia if which of the following was found? Diaphoresis and restlessness. In angina pectoris, the location of pain is usually retrosternal. Atherosclerosis means hardening of artery. Which of the following disease has a common atherosclerosis symptom? Common atherosclerosis symptoms क्या है? Cardiovascular disease. The P wave in ECG represent. P wave जो है ECG में वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन यानी आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है. सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर पेन मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व कटिंग द नर्व रूट टू रिलीव पेन इज कॉल्ड राइजोटॉमी. राइजोटॉमी क्या है? सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर पेन मैनेजमेंट जिसमें इन्वॉल्व होता है कटिंग नर्व रूट टू रिलीव पेन. इसमें पेन रिलीव करने के लिए यूज किया जाता है. नर्व रूट को कट किया जाता है ताकि उसको पेन से रिलीफ मिल सके. उसी को राइजोटॉमी बोलते हैं. ए नॉन ऑपोइड एनाल्जेसिक. ऐसा कौन सा दर्द का दवाई है जो नॉन ऑपोइड है? यहाँ पे नेप्रोक्सेन. नेप्रोक्सोन जो है एपोइड नहीं है, ऑपियोइड. नॉन ऑपियोइड एनाल्जेसिक है. एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर. अब 393 में आ रहे. द क्रेनियल नर्व इफेक्ट इन वेल्स पाल्सी इज. वेल्स पाल्सी में फेसियल नर्व डैमेज होता है और फेसियल नर्व 7th नंबर पे होता है. इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन इज अ साइन ऑफ. इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन साइन है एट्रियल ओकल्सिव डिजीज का. लेबोरेटरी टेस्ट दैट कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ MI. लेबोरेटरी टेस्ट जो कि कंफर्म करता है डायग्नोसिस MI का वो है LDH, CK-MR और ट्रोपोनिन. और सबसे पहले ट्रोपोनिन रिलीज होता है, उसके बाद CK-MR. ठीक है. Which term describe a lower than a normal number of platelets. जब नॉर्मल नंबर ऑफ प्लेटलेट से कम प्लेटलेट्स का काउंट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. If there is a pain where when palpating the tragus or auricle, the problem is otitis externa. Tragus and auricle. A minimal invasive technique by which thin insulated lead wire containing electrode are implanted in the brain is called deep brain stimulation. Smoking is not a predisposing factor for which of the following cancer? Lymphoma. लिम्फोमा जो है स्मोकिंग से रिलेटेड नहीं है. वो लिम्फोमा लिम्फ का कैंसर है और वो किसी भी तरह स्मोकिंग से रिलेटेड नहीं है. ठीक है.
और लैरिंग्स वाला कैंसर तो रेस्पिरेटरी कैंसर तो ऑफ कोर्स हो सकता है स्मोकिंग से, ब्लैडर वाला भी हो सकता है, स्टमक भी हो सकता है, पर लिम्फोमा का कुछ खास कनेक्शन से है नहीं. Tumors located in sella turcica and small adenoma of the pituitary gland can be removed by what? वो होगा ट्रांसफेनॉइडल अप्रोच. ट्रांसफेनॉइडल अप्रोच. Interstitial suctioning is done using NG tube to prevent what in a patient suffering from acute pancreatitis? Pancreatic stimulation. भगवान जी, थैंक यू. Which nursing diagnosis is most appropriate for a patient with chronic venous insufficiency? Skin integrity impaired. कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस किया जाता है पेशेंट को जो कि क्रॉनिक वेनस इंसफिशियंसी उसको हुआ है, तो उसको स्किन इंटीग्रिटी इम्पेयर्ड किया जाता है. द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑस्टियोमेलाइटिस इज. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है ऑस्टियोमेलाइटिस का वो क्या है? पेन होगा, रेडनेस होगा, फीवर और मलाइज होगा, ऑल ऑफ द अबव. ए पेशेंट कम इन with an embolic stroke. Which of the following condition put the patient at risk for a thromboembolic stroke? Atrial fibrillation. The treatment plan of syndrome of inappropriate ADH is. ADH मतलब एंटी डायोरेटिक हार्मोन का ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा अगर वो इनअप्रोप्रिएट अमाउंट में सेक्रीट होने लगा है, ज़्यादा या कम? तो आईवी इन्फ्यूज़न ऑफ नॉर्मल सलाइन कर सकते हैं, फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीमीक्लोसाइक्लिन एज अ प्रिस्क्रिप्शन. तो ऑल ऑफ द एबव. Which of the following is not a metabolic complication of chronic renal failure? इन सब में से जो है chronic renal failure का metabolic complication नहीं है. तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट का जो इम्बैलेंस होता है, इसमें हाइपोकैल्सीमिया तो होता ही है, और हाइपरकैलेमिया होता है, हाइपरनेट्रेमिया होता है, और हाइपरफॉस्फेटेमिया होता है, और हाइपर पैराथायराइड होता है जिसके कारण कैल्शियम तो कम ही होगा. हाइपरकैलेमिया, हाइपर नेट्रीमिया होता है, बट ये हाइपर होता है, ये हाइपो नहीं होगा. ठीक है, कम नहीं होता है, फॉस्फेट बढ़ जाता है. ठीक. ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो होता है, इसमें बहुत सारे फ्रैक्चर हो जाते हैं, बहुत सारे ब्रेक्स हो जाते हैं बोन में, बट वो पूरी तरह से टूटता नहीं, क्रैक्स बहुत सारे हो जाते हैं ग्रीन स्टिक, और ये इन्फेंट्स और न्यू बॉर्न में होता है ज़्यादातर. ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये इनकम्प्लीट फ्रैक्चर में आएगा, क्योंकि कम्प्लीटली तो ब्रेक नहीं होता है ना, सिर्फ ब्रेक जैसा बहुत सारा पीसेस में ऐसे ब्रेकिंग हो जाता है, बस टूटता नहीं है पूरी तरीके से. प्रोटीन पंप इन द स्टमक इज एन एग्जांपल ऑफ. प्रोटीन पंप जो होता है स्टमक में, प्रोटीन पंप जो होता है सेल्स के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोलाइट बाहर अंदर करता है, वो एग्जाम्पल है किस तरह का ट्रांसपोर्ट का? तो वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है और पैसिव में एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते हैं. ठीक है, तो सेकेंडरी एक्टिव में जो होता है ट्रांसपोर्ट जो होता है, उसमें लो से हाई कंसंट्रेशन में ट्रेवल करता है. जैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न जो हो गया, ये पैसिव का एग्जांपल है, इसमें एनर्जी का यूज़ नहीं होता है. तो इसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इसमें तो कुछ एनर्जी का यूज़ नहीं हुआ. लेकिन अगर हम लो कंसंट्रेशन से उसको हाई कंसंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट करना चाहेंगे तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आएगा. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेकेंडरी में होगा. ठीक है, और प्राइमरी में भी एटीपी का यूज़ किया जाता है. दोनों में अंतर ये है कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय द यूज़ ऑफ एनर्जी, और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल अक्रॉस द ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन यूजिंग एटीपी. तो मतलब सेकेंडरी में जो होता है वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है मेम्ब्रेन के आर पार. ठीक है,
तो इसमें जो होता है प्राइमरी में सिर्फ एक मॉलिक्यूल ही ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, एनर्जी का यूज़ करके, लेकिन सेकेंडरी में 2 टाइप का मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं एक बार में, ठीक है। और प्राइमरी यूज़ करता है एनर्जी फ्रॉम एटीपी, सेकेंडरी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द ड्राइविंग आयन प्रोवाइड एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्राइविंग मॉलिक्यूल अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सेकेंडरी में जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो ड्राइव करता है आयन के थ्रू, तो आयन का इस्तेमाल करके ट्रांसपोर्ट करता है, तो आयन के थ्रू एनर्जी को वो अचीव करता है, डायरेक्ट एटीपी नहीं लेता है, आयन के थ्रू इस्तेमाल करता है, तो मतलब एनर्जी यूज़ करता ही है बट आयन के थ्रू करता है, ठीक है। तो प्राइमरी में जो होगा उसमें आयन्स होगा सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, ये ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और सेकेंडरी में जो होता है आयन्स ड्राइविंग मॉलिक्यूल, वाइल आयन और अदर मॉलिक्यूल सर्व एज ए ड्राइविंग मॉलिक्यूल। तो प्राइमरी का एग्जांपल है सोडियम पोटाशियम पंप, कैल्शियम पंप इन द मसल्स, प्रोटॉन पंप इन द स्टमक। और सेकेंडरी का एग्जांपल हो गया ग्लूकोज, सोडियम पंप, कैल्शियम एक्सचेंज एंड सोडियम फॉस्फेट कंसंट्रेशन एग्जांपल हो गया इसका, ठीक है। प्रोटॉन पंप होता है प्राइमरी में, प्रोटीन पंप हुआ सेकेंडरी का, ठीक। तो आयन के थ्रू एनर्जी यूज करता है सेकेंडरी, और ये प्राइमरी जो है एक आयन को ही एक टाइम में ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो डायरेक्ट एटीपी का ही यूज़ करता है। पोटेशियम पंप, कैल्शियम पंप जैसे ये अलग अलग हो गया, लेकिन सेकेंडरी में 2 मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये आयन के थ्रू। तो ग्लूकोज सोडियम पंप, देखिए ग्लूकोज और सोडियम पंप 2 मॉलिक्यूल आया ना, सोडियम और कैल्शियम एक्सचेंज होता है, सोडियम फॉस्फेट एक्सचेंज होता है, मतलब एक बाहर एक अंदर, ऐसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करते हुए ये लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, इस तरह से एनर्जी का यूज़ करते हैं, तो मतलब करते हैं एनर्जी का यूज़। और सिंपल डिफ्यूज़न, तो सिंपल डिफ्यूज़न जो होता है, इफ़ ग्लूकोमा इज़ नॉट ट्रीटेड दिस कैन हैपन, ग्लूकोमा को अगर नहीं ठीक करेंगे तो अंधा हो जाएगा, ब्लाइंडनेस होगा। उसके बाद क्या है, ए पेशेंट विथ रीनल फेल्यूर हैज़ अ सीरम पोटेशियम लेवल 6.5, तो इसका पोटेशियम लेवल ज़्यादा है। पोटेशियम नॉर्मल कितना होता है, मैंने लिखाया है शॉर्ट्स में भी बताया है, एक बार देख लीजिएगा शॉर्ट्स में जाके, 3.5 to 5.5 m इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो नर्स नोज विच मेडिकेशन इज यूज टू ट्रीट हाइपरकैलेमिया इन रीनल फेल्यूर, तो यहाँ पोटेशियम का लेवल बढ़ गया है, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या देंगे उसको कि वो बैलेंस हो जाए, वो ठीक हो जाए, तो उसके लिए हम लोग देंगे सोडियम पॉलीस्टाइरेन सल्फोनेट, फर्स्ट ए। विच टाइप ऑफ कैंसर हैज़ द वर्स्ट प्रोग्नोसिस, सबसे बुरा प्रोग्नोसिस किस तरह के कैंसर को होता है, पैनक्रिएटिक कैंसर को। ए क्लाइंट हैज रिसेंटली बीन डायग्नोज विथ ल्यूकेमिया, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम डज नर्स एक्सपेक्ट, एक क्लाइंट जिसको रिसेंटली डायग्नोज किया गया है ल्यूकेमिया, मतलब WBC कम हो गया है, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर, सॉरी, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम डज नर्स, तो उसमें क्या क्या सिम्टम होगा, उसमें ब्रूसिंग होगा, फटीग होगा, बोन में पेन होगा, ए हो गया, ठीक। ब्रूसिंग मतलब ब्लड बाहर जम जाता है और ब्लू ब्लू जैसा धब्बा बन जाता है उसके कारण। द नोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, रेयरली होता है बट अपने ही इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, तो ऑटोसोमल। तो अब द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ऑफ लेडिंग्स डज नॉट इंक्लूड, ट्रीटमेंट जो होता है लेडिंगल कैंसर का उसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, लेडिंगोटॉमी तो करेंगे, लेडिंग्स को कट करेंगे जो पार्ट डैमेज होगा, केमोथेरेपी तो मेडिकेशन ही है, रेडिएशन थेरेपी तो होता ही है, रेडिएशन के थ्रू उसको ठीक करना। लेरिंगोस्कोप जो है ट्रीटमेंट नहीं है, वो डायग्नोसिस करने के लिए यूज़ हो सकता है, क्योंकि ये इसमें कैमरा होता है और ये देखने के लिए किया जाता है यूज़। फॉर मैलिग्नेंट मेलानोमा ऑफ द आई ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होगा इन न्यूक्लिएशन। आई ट्रीटमेंट के लिए, आई ट्रीटमेंट मैलिग्नेंट मेलानोमा, आँख में कैंसर अगर हो गया तो उसका ट्रीटमेंट होगा इन्यूक्लिएशन, रिमूवल ऑफ आई, आई को निकाल दिया जाएगा, और कोई उपचार तो है नहीं कैंसर का।
Which of the following is used to remove excessive wax accumulated in external ear canal of client? Warm normal saline irrigation. Which post-operative activity does the nurse advise a patient to avoid because of risk of increased intracranial pressure? कौन सा पोस्ट ऑपरेटिव एक्टिविटी नर्स एडवाइज करेगी पेशेंट को कि वो अवॉइड करे बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर? तो कफिंग, अगर किसी का इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा है तो उसको कफिंग अवॉइड करने कहेंगे क्योंकि उससे उसका प्रेशर बढ़ेगा तो उसको डैमेज हो सकता है. द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर ऑफ प्लूराइसी इज, सबसे कॉमन क्लिनिकल सिम्टम क्या है प्लूराइसी का? तो वो है शार्प स्टैबिंग पेन ड्यूरिंग ब्रीथिंग, सांस लेते समय उसको दर्द होगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोअर एयरवे डिसऑर्डर? लोअर एयरवे का डिसऑर्डर इन सब में से कौन सा होगा? अस्थमा. अस्थमा क्या है? एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है. द ट्रीटमेंट प्लान फॉर अस्थमा इंक्लूड, ट्रीटमेंट प्लान जो है अस्थमा का वो क्या है? तो वो हो गया मेंटेन पेशेंट एयरवे, मेंटेन न्यूट्रिशन, मेंटेन प्रॉपर ब्रीथिंग पैटर्न, ऑल ऑफ द अबव. विच मेडिसिन इज नॉट यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा? अस्थमा के ट्रीटमेंट में कौन सा मेडिसिन यूज नहीं किया जाता है? एंटासिड. पीरियड ऑफ रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पाज्म इज अ सिम्टम ऑफ विच रेस्पिरेटरी डिजीज? कौन से रेस्पिरेटरी डिजीज का है? अस्थमा का. द मोस्ट इंपॉर्टेंट काउज ऑफ लंग कैंसर इज, लंग कैंसर का सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है? सिगरेट स्मोकिंग. क्लिनिकल फीचर ऑफ लंग कैंसर आर, लंग कैंसर का जो है क्लिनिकल फीचर क्या होता है? लगातार कफ, हिमोप्टाइसिस, उल्टी आना कफ ब्लड के साथ, चेस्ट पेन, ऑल ऑफ द अबव. ए पेशेंट विथ ओपन एंगल ग्लूकोमा मे हैव अ इम्पेयरमेंट ऑफ पेरिफेरल विजन, नीचे का विजन में प्रॉब्लम हो जाता है, देखने में नज़र कमज़ोर हो जाती है. विच साइन एंड सिम्टम आर नॉट फाउंड इन पेशेंट ऑफ क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा? क्रॉनिक जो लंबे समय तक होगा ओपन एंगल ग्लूकोमा में कौन सा प्रॉब्लम होता है? तो ओपन एंगल ग्लूकोमा मतलब आइरिस के पीछे से जो एक्वस फ्लूइड बन रहा है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आया है, बस फ्लूइड बहुत ज़्यादा बन रहा है, ठीक है. तो उसके कारण जो ग्लूकोमा होगा और इंट्राक्रैनियल प्रेशर, आँख का प्रेशर जिस उसके कारण बढ़ेगा तो उसी को ओपन एंगल ग्लूकोमा बोलते हैं. और अगर किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण आँख में प्रेशर बढ़ेगा, उस पाथवे में जहाँ से एक्वस फ्लूइड सेक्रेट होता है उस पाथवे में किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, प्लग बन गया, फैट हो गया, एयर हो गया, या कुछ भी वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उसको ब्लॉक कर रहा है उसके पाथवे को, तो उसको क्लोज एंगल ग्लूकोमा बोलते हैं, ठीक है. तो कौन सा साइन सिम्टम नहीं पाया जाता है ओपन एंगल ग्लूकोमा में? तो वो होगा आई पेन नहीं होता है, आँख में दर्द नहीं होता है, बट कलर लाइट फ्लैश आते हैं, डिक्रीज पेरिफेरल विजन हो जाता है, एक्सेसिव लैक्रिमेशन, बहुत ज़्यादा आंसू आने लगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. प्लीज़ सब्सक्राइब करो, मेरे व्यूज़ को बढ़ाओ. और BTSC के एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही मैंने ये कंटेंट डालना शुरू किया. अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करो कि मुझे ये चाहिए, मुझे MCQ वीडियो चाहिए. आप लोग बोला करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो, जिससे कि जिसको इसकी ज़रूरत है, जिसके लिए ये हेल्पफुल होगा, उन तक पहुँच सके और मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो और आप लोग के लिए ही कंटेंट डाल रहे कि आप लोग को हेल्प हो थोड़ा. सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल.